علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی محمد وآل محمد سید الرجال المفضل، یا بحر الکمال یا جمال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام پہ احسان حسین ابن علی ہے، اسلام پہ احسان حسین ابن علی ہے، مولا علی نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے، مولا علی نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے۔ کہنے کو تو سب کہتے ہیں اپنے کو مسلمان، کہنے کو تو سب کہتے ہیں اپنے کو مسلمان، جنت میں وہی جائے گا جو پنجتنی ہے، جنت میں وہی جائے گا جو پنجتنی ہے۔ سجدہ یہ کیسا پیش خدا کر گئے حسین، سجدہ یہ کیسا پیش خدا کر گئے حسین، جو حق تھا بندگی کا ادا کر گئے حسین، جو حق تھا بندگی کا ادا کر گئے حسین۔ سجدہ نہیں ہے یہ تو بس سجدے کی نقل ہے، سجدہ نہیں ہے یہ تو بس سجدے کی نقل ہے، سجدہ تو کربلا میں ادا کر گئے حسین، سجدہ تو کربلا میں ادا کر گئے حسین۔ بیٹے بھتیجے بھانجے اور اپنا سر دیا، بیٹے بھتیجے بھانجے اور اپنا سر دیا، امت کا سارا قرض ادا کر گئے حسین، امت کا سارا قرض ادا کر گئے حسین۔ اے کربلا حسین کی عظمت کو کر سلام، اے کربلا حسین کی عظمت کو کر سلام، تیری زمین کو خاک شفا کر گئے حسین، تیری زمین کو خاک شفا کر گئے حسین۔ با اختیار ہو کے بھی ہر ظلم سہ لیا، با اختیار ہو کے بھی ہر ظلم سہ لیا، حیرت میں دو جہاں ہیں کیا کر گئے حسین، حیرت میں دو جہاں ہیں کہ کیا کر گئے حسین۔ ممکن نہیں نبی کے نواسے کی کوئی مثل، ممکن نہیں نبی کے نواسے کی کوئی مثل، اپنی ساری ہستی حق پر فدا کر گئے حسین، اپنی ساری ہستی حق پر فدا کر گئے حسین۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، آج بڑی خوش نصیبی ہے ہم تمام کی، اللہ رب العزت نے عاشورے کی شب اس کے چند لمحات ہم تمام کو اس کے گھر میں مسجد میں گزارنے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ بزرگ اور دوستو،
اللہ رب العزت نے ہم تمام پر بہت بڑا احسان فرمایا. وہ احسان عظیم یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے حسین پاک کے نانا جان کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا. بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اہل بیت کا وفادار بنائے رکھا. اور اس مجلس میں، اس مقدس نورانی محفل میں میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جب تک زندگی رہے، سانس میں سانس رہے، مولا ہم سب کو اس ذکر کی برکت سے عاشورے کی شب کے صدقے میں مولا ہمیشہ پنجتن پاک کا وفادار بنائے رکھنا. مولا ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. کسی کو دنیا میں دولت ملی، کسی کو زمانے کی حکومت ملی، کسی کو جہاں میں شہرت ملی، ہم اپنے مقدر پر قربان جائیں. ہمیں رسول اللہ کے گھرانے کی نسبت ملی، ہمیں رسول اللہ کے گھرانے کی نسبت ملی. بزرگوں اور دوستو، آج ہم جس ہستی مبارک کا ذکر پاک کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، جگر گوشہ بطول آل رسول، سید الشہداء، امام الاتقیاء، سید الصوفیاء، شمس العارفین، اور ہم تمام پر رہبری فرمانے والی وہ مقدس ذات گرامی جس کو دنیا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے. بزرگوں اور دوستو، آپ جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کیوں بپا ہوا. آپ نے اپنی قربانی کا جو نذرانہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش فرمایا، آپ کی شہادت کا مجدہ یہ کون سی عمر میں آ کر طے ہوا. بزرگوں اور دوستو، آج میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک اپنے بے مثل و مثال کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بندے سے، اپنے چاہنے والے سے، اپنے محبوب سے، اپنے مقرب سے امتحان لے، اسے آزمائیں، تو ہم جب اس کی پرسنالٹی، اس کا مقام، اس کا معیار دیکھ کر اسے امتحان لیتے ہیں. بزرگوں اور دوستو، جس بندہ درجے تک پڑھتا ہے، جہاں تک اس کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، اس کے حساب سے اس کو اس ایگزام میں بٹھایا جاتا ہے. لیکن قربان جائے، اللہ رب العزت نے جو مولا حسین علیہ السلام سے امتحان لیا، یعنی اللہ پاک جو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اگر چاہوں کسی سے تو اسے خوف ڈال کر امتحان لیتا ہوں، اگر میں چاہوں تو کسی کو اس کے بھوک سے آزما کر، کھانا اس کو نہیں دے کر فاقہ کشی کے عالم میں مبتلا کر آزماتا ہوں، یا پھر اسے نقصان مال کا دے کر آزماتا ہوں، یا پھر اس کی پراپرٹیز، اس کے کھیت کھلیان جو اس کی جاگیر ہے، جائیداد ہے، اس کا خطرہ محسوس کرا کر اس کا امتحان لیتا ہوں. اس کے بعد جب بندہ ان امتحانات میں ایک ایک امتحان پر صابر اور شاکر رہے، سرتاپا تسلیم و رضا کا لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں امتحان کے لیے استقامت کے ساتھ جب کھڑا ہو، اور اللہ رب العزت کو یہ نظر آئے میرا بندہ میرے امتحان میں جو میں نے اس سے لیا ہے، امتحان گدا میں، ایگزامینیشن ہال میں، اللہ رب العزت جب کسی بندے کو دیکھ لیتا ہے کہ اس کی پڑھائی، اس کا امتحان دینے کا انداز بہتر نہیں بہترین ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پھر خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے اتنے امتحانات پر جو اللہ کی بارگاہ میں صبر کا لباس پہن کر رہے. بزرگوں اور دوستو، صبر کوئی عام لباس نہیں ہے، صبر کوئی عام زیور نہیں ہے، صبر اتنا بڑا زیور ہے بزرگوں
और दोस्तों, सबर इतनी बड़ी शय का नाम है कि जब बंदा इसको अपने पास, अपने करीब कर लेता है, अपने अंदर ज़ेबतन कर लेता है सबर को, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक उसे खुसूसी शान अता फरमाता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, एक इम्तिहान या भूख से आजमाया जाए, या कोई उसे नुकसान देकर आजमाया जाए, या उसको माल से आजमाया जाए, या आल का गम देकर आजमाया जाए, या उसकी प्रॉपर्टीज देकर आजमाया जाए, एक एक इम्तिहान अगर उसके साथ रफ्ता रफ्ता हो, अगर एक इम्तिहान में भी अगर अल्लाह के अगर वो बंदा कामयाब हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में वो बड़ा ऊंचा दर्जा पाता है। लेकिन इस कायनात के अंदर रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में एक हस्ती ऐसी है जो पूरी आयत करीमा, जिसकी शान में अगर हम गौर करते चले जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा इम्तिहान आखिर किससे लिया जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ही बजाते खुद में जान से भी आजमाए, माल से भी आजमाए, आल से भी आजमाए और उसको भूख से भी आजमाए, दुनिया के हर मरहले से गुजार कर अल्लाह उसका इम्तिहान ले और हर इम्तिहान में वो आला नंबरात से कामयाब हो, तो बुजुर्गों और दोस्तों, वो हस्ती हमें नजर आती है जो करबलाए मुअल्ला में राज कर रही है। वो जाते गिरामी इमाम आली मुकाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जाते गिरामी है। बुजुर्गों और दोस्तों, वजह क्या है कि मैदान करबला में इमाम आली मुकाम को अपना घर दार अहलो अयाल सब छोड़कर जाना पड़ा। उसकी बहुत बड़ी वजह है बुजुर्गों और दोस्तों कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, इस रूए जमीन पर जब आपकी विलादत बासआदत हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ एक मखसूस फरिश्ते को जमीन पर नाजिल फरमाया और वो फरिश्ता रूहुल अमीन सैयदुल मलाइका के साथ तशरीफ फरमा है। शायद आज तक हो सकता है कि आपकी समातों से यह बात गुजरी हो, या यह भी हो सकता है कि ना गुजरी हो। आज सुन लीजिए, क्योंकि आज हम तज़किरा समात करने के लिए आए हैं और खाली सुनने के लिए नहीं आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन के उनके करम की खैरात और भीख लेने के लिए आए हैं। और इंशाअल्लाह हमारा ये विजदान है, यकीन है, अकीदा है, खुदा की कसम हम इस महफिल में से उठेंगे, बाद में करम की खैरात पहले मिल जाएगी। क्योंकि मेरा आपका सबका यहाँ जितने बैठे हैं, सबका घर जो पल रहा है, हमारे घरों में जो दाना मैसर आ रहा है, आज जो हमारे घर में अनाज मैसर है, खुदा के इज्जत व जलाल की कसम ये सैयदा के घर का सदका है। आज हम फाका कशी से बचे हुए हैं। 3 वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत अकले हलाल, रोजी, खाना बेहतरीन हम तमाम को साफ और शफ़ास खिला रहा है। तो ये सदका है साफ और शफ़ास पाक घराने का, ये फैज़ है अहले बैत अतहार का। बुजुर्ग और दोस्तों, जब इमाम अली मुकाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, बस 2 वजाहतें करके मैं इंशाअल्लाह ताला वाक़यात करबला की तरफ बिला किसी ताक़ीर इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि आपको मैं उस जानिब ले चलूं जहां पर आका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आज आराम फरमा है। क्योंकि ये आम मामला और आम मसला नहीं है। आज ये रुआब हल्क़े बुरीदा का क्या कम है, यानी गला, कटा हुआ गला बुरीदा कहते हैं। ये रुआब हल्क़े बुरीदा का क्या कम है। आज ऐसे लगता है कि जालिम को अपने खंजर पे भरोसा कम है। आज जालिम को अपने खंजर पे भरोसा कम है और राह काबा से बहुत दूर है जन्नत। राह काबा से बहुत दूर है जन्नत। करबला से होके गुजरो जी, रास्ता कम है। करबला से होके गुजरो, रास्ता कम है। जिक्र शब्बीर करो, इबादत की है ये रात। जिक्र शाह करो, इबादत की है ये रात। ये रात ऐसे है जैसे शबे बारात।
दीवानों बैठे बैठे आज तसव्वुर में बांध कर करबला मांगने के लिए उठा लो हाथ। आज हम तमाम की बनाने को तकदीर आए हैं, यकीन के साथ बैठे रहना, हमारे दरमियान में आज शब्बीर आए हैं, हमारे दरमियान में आज शब्बीर आए हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, जब मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागर हुए, एक ऐसा फरिश्ता अल्लाह ने जमीन पर नाजिल फरमाया। और आपको बताता चलूं, एक ऐसा फरिश्ता था जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक अजाब में मुब्तला फरमाया। उनके तमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज़ा को शल फरमा दिया, जिसे कहते हैं पैरालाइज। कई सालों साल से वो इस तकलीफ में मुब्तला और मुलव्विस हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, झूले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत के उस फितरुस फरिश्ते ने अपने आप को झूले से इमाम हुसैन के मस किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी लम्हे उस फरिश्ते को शिफा अता फरमाई। और एक नई बात आप तमाम को अर्ज कर रहा हूं कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो एक फरिश्ता रूहुल अमीन के साथ तशरीफ लाया इस कायनात में, और आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज किया। उस फरिश्ते ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मैं पैदा हुआ हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस काम के लिए, ये ड्यूटी के लिए मुझे रखा है कि जब मेरे नबी का नवासा इस दुनिया में आए तो ए फरिश्ते तेरा काम है जाकर मेरे महबूब को मुबारकबाद पेश करना, मुबारकबाद पेश करना। बुजुर्ग और दोस्तों, उस फरिश्ते ने मुबारकबाद पेश की। उसके बाद थोड़े लम्हात के बाद वो फरिश्ता कहता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शहजादे की विलादत आपको मुबारक हो, और उसके साथ मैं एक अफसोसनाक खबर भी लेकर हाजिर हूँ। आका फरमाते हैं, अभी तो मेरे शहजादे की विलादत की मुबारकबाद दी है और तुम कहते हो कि अफसोसनाक भी खबर है, वो खबर क्या है? तो फरिश्ता कहता है कि आपके इस शहजादे को कई साल गुजरने के बाद आपकी उम्मत करबला की सरजमीन पर बेदर्दी से इन्हें शहीद कर दिया जाएगा। आपको लम्हे फिक्र दे रहा हूं। बुजुर्ग और दोस्तों, खुश नसीब है वो लोग जो आज मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, उनकी याद में अपनी मसरूफियात को बालाए ताख रख कर यहां बैठे हुए हैं। आज देखिए, कोई दुनिया में अपने कामों में लगा हुआ है, कोई घूमने फिरने में अपनी मसरूफियात में लगा है, लेकिन खुश नसीब है हम लोग अपने जिक्र के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हम तमाम को मुंतखब फरमाया है। बुजुर्ग और दोस्तों, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने ये खबर जब समात की, ये वो हस्ती है कि जुबान से अगर कुछ कह दे, मुकाम और मनसब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है कि मेरे महबूब के जुबान से कुछ अल्फाज अदा हो, इधर अल्फाज अदा हो, इधर कबूलियत का दर्जा मिल जाए, इधर दुआ हो, इधर पूरी हो जाए। आका अगर चाहते, मौला मेरे बेटे की, मेरे शहजादे की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर जो मुझे सुनने मिली है, मौला तू इसे टाल दे। क्या मुश्किल था, अगर आका फरमा देते तो वो मरहला टल जाता। लेकिन मेरे आका ने अपने शहजादे को गोद में लेकर यह नहीं कहा मौला मेरे शहजादे की मुश्किल को टाल दे। मेरे आका ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर यह दुआ की, मौला जब ऐसे इम्तिहान का वक्त आए मेरे बेटे पर, परवरदिगार तू अपने करम से सब्र की दौलत अता फरमाना। बुजुर्गों और दोस्तों, गोया रसूल जानते हैं कि दीन मुस्तफा का जो मामला है, आका करीम अलैहिस्सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया, इसीलिए हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के चाचा जान, आपकी ज़ौजा मोहतरमा यानी हुजूर की चाची साहिबा ने ख्वाब देखा। अर्ज करती है बारगाह रिसालत मुआद में आकर कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, मैंने बड़ा भयानक ख्वाब देखा है, बड़ा डरावनी ख्वाब देखा है, जिसकी वजह से मेरी नींद खत्म हो गई है, परेशानी के आलम में आपकी बारगाह में आई हूं। आपने पूछा कि चाची आपने बताइए क्या ख्वाब देखा है। आप अर्ज करती है, या रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, मैंने ख्वाब में देखा कि आपके जसद मुबारक के गोश्त का टुकड़ा आपके जिस्म से निकलकर मेरी गोद में आया है। आप फरमाते हैं, चाची मुबारक हो, मेरी बेटी सैयदा के घर लाल की विलादत, मेरे घर सैयदा पाक के घर में मेरे शहजादे की विलादत होने वाली है। मौलाए कायनात के घर शहजादे तवल्लुद होने वाले हैं। उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी खिदमत के लिए तुम्हें मुंतखब फरमाया है। बुजुर्गों और दोस्तों, देखिए कितने ऊंचे मर्तबे पर फाइज है आका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। आज का ये दौर हम देख रहे हैं कि कहते लोग के मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या जरूरत थी अपने पूरे अकरीबा, अपने खानदान को लेकर करबला जाने के लिए। वो अगर चाहते तो ना जाते। लोग तरह तरह की बातें करते, लोग कह रहे हैं, यहां तक के जुबानें बढ़ गई है कि ये दो शहजादों की जंग है। बुजुर्ग और दोस्तों, कहां जर्रे नाचीज और कहां तहारत का आफताब। बुजुर्ग और दोस्तों, लोग आज मिलाने जा रहे हैं। खुदा के इज्जत व जलाल की कसम, याद रखिए, बनु उमैया के तमाम कबीले के सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जूती के बराबर भी नहीं है। वो शान के मालिक है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। बुजुर्ग और दोस्तों, आज हर जगह पर जिल्लत और रुसवाई हो रही है। उसकी अहम तरीन वजह यही है कि आले रसूल का दर्द हमारे पास से खत्म हो गया है। अगर आज चाहती है उम्मत मुस्लिमा सुरखुरू होकर अपनी जिंदगी गुजारे, बेहतर तरीके से अपने हयात के लम्हात को गुजारे, खुदा की कसम आपको सर झुकाना होगा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में। और इधर आपका सर झुका, समझ लीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उस सर को रिफात और बुलंदी अता फरमाएगा। सरकार इमाम हसन अल मुज्तबा अलैहिस्सलाम का जमाना है। बुजुर्ग और दोस्तों, सरकार अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के बाद हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम व रजी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु अलैहिस्सलाम से एक जंग हुई जनाब हजरत अमीर शाम के साथ, जिस जंग को जंगे सिफीन कहते हैं। उस जंगे सिफीन के अंदर मुल्क शाम से हजरत अमीर मुआविया एक लश्कर लेकर निकले थे, फौज का बहुत बड़ा। किसके खिलाफ? हजरत अली के खिलाफ जंग करने के लिए। और मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम कूफे से, क्योंकि मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपना दारुल खिलाफा कूफा बनाया था। आपस में एक मुकाम पर दोनों ये लश्कर जमा हुए और मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम कई वक्त तक चाहते थे कि जंग ना हो, सुलह हो जाए, क्योंकि मुसलमान का खून ना बहे। आपने कई कोशिशें की, बहरहाल वो मामला, क्योंकि लगभग 20 से 22 साल की गवर्नरी जनाब हजरत अमीर शाम को करते हुए हो गई थी, तो वो चाहते थे कि अब खिलाफत का दावा तो ऐसे नहीं कर सकते मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के सामने। तो उन्होंने एक चीज अपने इस जंग को एक नया रूप देने के लिए ये बात सामने रखी कि हजरत उस्मान गनी के कत्ल का बदला लेना है। बुजुर्ग और दोस्तों, मौलाए कायनात के पास इसके मुताबिक ये टाइटल दिया गया जंग को कि उस्मान गनी के कातिलों का बदला लेना है। और मौलाए कायनात के पास जब ये आमना सामना हो गया दो गिरोह का, तो ये कहा गया मौलाए कायनात के पास कि आप उस्मान गनी के कातिल को हमारे हवाले कर दे, उनके कातिलीन को।